Unacademy. Let's crack it. Hello friends, welcome to Unacademy, and with us today is Radhika Gupta. You know who Radhika Gupta is? Rank 18 All India, rank 18. Can you believe we are in presence of a genius? And Radhika, a huge congratulations, not only from me personally, but from our entire family, entire team at Unacademy, and the thousands and thousands of aspirants who are actually watching you right now. So Radhika, this is a big thing, and I hope that learners who are watching us will get tons and tons of motivation from you. Welcome, Radhika. Thank you. Congratulations. Thank you so much for such a hearty welcome. Thank you, sir. Radhika, वैसे ना ऐसा मीडिया पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है, सो मैं भी वैसे ही ट्राई करने वाला हूँ. आपको कैसा लग रहा है? प्लीज टेल अस इन वर्ड्स. आर यू what words can be sufficient enough to describe this kind of feeling? So please share with us, what are you feeling right now? It's such a surreal feeling that I really don't know what word would suffice and what actually I can speak and make it count, because ever since the results has come out, I initially didn't sink in. I couldn't believe my eyes. But my family has been extremely happy, and there are visitors in my family. Everyone is happy around here, so it's a surreal feeling, and I don't really know a better word to express that. I can absolutely understand and appreciate that. Radhika, all our learners, all the people, thousands and lakhs and crores of people who are right now watching you, we want to know what Radhika's background is. What was your academics like? What was your schooling like? Could you please shed some light on that? We really want to know you. So I'll take you back to my childhood. So this is I come from a district which is named as Alirajpur, Madhya Pradesh. Although it is famous for certain things, but it is also infamous for being the least literate district in the country. So I come from that region, and my schooling has been done here itself. So initially मैं हिंदी मीडियम में थी, फिर उसके बाद इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हुए हम लोग. 10th के बाद मैं बाहर गई and I studied for my engineering entrance exam. उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की है मैकेनिकल स्ट्रीम में फ्रॉम GSITS इंदौर, और ब्रीफ पीरियड के लिए मैंने एक ऑटोमोटिव सेक्टर में भी काम किया है. एंड 2019 में आई रोट माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन UPSC. तो उसके थ्रू मुझे रिजर्व लिस्ट के थ्रू इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस एलोकेट हुआ था. Currently I'm working undergoing training at Baroda, and this was my second attempt. So schooling has been done here, and my entire childhood has been spent here in my district. That's about me. Radhika, I just took it from what you were saying. These two words, Hindi medium and English medium, they weigh heavy on the minds of aspirants. बहुत सारे, because I've been teaching, तो बहुत सारे students, aspirants को ये doubt रहता है कि does coming from Hindi medium give you a so-called disadvantage, and coming from English medium give you an unfair advantage, or something on those lines? What do you have to say about that, Radhika? सर मतलब मेरा इसमें टेक ये रहेगा कि एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स समहाउ हम लोग जिस तरीके से बड़े हुए हैं, जो हमने ऑब्जर्व किया अपने आसपास, एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमेशा होता है कि हिंदी मीडियम के बच्चे को. उसे लगता है कि वो किसी से कमतर है. बट आई पर्सनली फील दैट दिस इज वेयर वी नीड टू चेंज. वी नीड टू मेक आवर स्टूडेंट्स फील, वी नीड टू मेक आवर चिल्ड्रंस फील दैट यू आर नॉट एट अ डिसएडवांटेज ओनली बिकॉज यू डोंट नो अ लैंग्वेज. तो मैंने इंग्लिश इसलिए सीखी क्योंकि मुझे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता था, बट जब मैंने सीख ली तो मुझे रियलाइज हुआ कि इसमें इंफीरियर फील करने का या सुपीरियर फील करने का कोई रीज़न है नहीं एज सच. और जहाँ तक एग्जाम की बात है, तो समहाउ इन टर्म्स ऑफ मटेरियल और कंटेंट मुझे लगता है कि कुछ हद तक हिंदी मीडियम स्टूडेंट को थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है, थोड़ा सा डिसएडवांटेज है वहाँ पे. तो वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. जब आप एग्जाम लिख रहे हैं तो आप बिल्कुल ट्रीट किए जाते हैं. In that sense, UPSC has been very fair examination for both Hindi medium as well as English medium. और अब धीरे धीरे बहुत सारे कंटेंट क्रिएशन, जैसे अनअकैडमी है या फिर दूसरे चैनल्स हैं, तो वो बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट हर लैंग्वेज में दे रहे हैं. तो आई थिंक धीरे धीरे वो डिसएडवांटेज भी हम ब्रिज कर देंगे over the years. That's great. That is great. And coming from the topper, I think all the learners, I think the big takeaway is, please इस language को कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज का सोर्स में बनाओ. लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, अगर आपको कम्युनिकेट करना आता है तो हिंदी एंड इंग्लिश आर सेम, अदरवाइज नहीं आता तो बोथ ऑफ देम आर इक्वली यूजलेस. सो डोंट टेक इट एज रीजन ऑन द स्पॉट.
So, Radhika, imagine कि I am now going to the college and मेरा last year है या फिर I've just passed out, okay, and I come to your place, okay, and I say, Radhika, please मुझे बताइए how do I start my preparation, okay, and I borrow 10 minutes from your busy schedule. Please tell me step number 1 and all the way till I want to also be a topper rank in civil service examination. ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये lakhs and lakhs of people who are watching right now ना इस टाइम पर ऐसे नोट कर रहे होंगे. हाँ सर, ये बताओ step number 1 to onwards. Please, Radhika. Absolutely sir, मतलब मेरा भी पहला क्वेश्चन यही था कि प्लीज टेल मी हाउ डू आई गो अबाउट इट. तो आयरनी ये है हमारे साथ कि देयर इज कंटेंट का मतलब ओवर फ्लडिंग है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है, बहुत ज़्यादा गाइडेंस अवेलेबल है, तो अननेसेसरी चीज़ें कई बार कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं. तो जो मुझे पीस ऑफ एडवाइस मिली थी मेरे फाइनल ईयर में, जब मैं जॉब करी थी, आई वुड एक्चुअली एक्सटेंड दैट सेम एडवाइस टू ऑल द अदर एस्पिरेंट्स एज वेल. तो वो एडवाइस ये थी कि मेक थिंग्स वेरी सिंपल फॉर योर सेल्फ, मतलब चीज़ों को अननेसेसरी कभी कॉम्प्लेक्स मत करिए. ये एग्जाम सिंपल है प्रोवाइडेड आप इसको सिंपल बनाना चाह रहे हैं. तो जो पहली पीस ऑफ एडवाइस होती है वो ये होती है कि आप जिन लोगों ने एग्जाम क्लियर किया उनसे आप बात करिए, उनके वीडियोस देखिए, ये समझिए कि क्या रिसोर्सेज उन्होंने यूज किए हैं, और एक कॉमन लिस्ट अपनी खुद की बना के रखिए उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपनी समझ के अनुसार. और उस लिस्ट को बनाने के बाद, क्योंकि ये एक मैराथन प्रोसेस है, ये ऑलमोस्ट 1.5-2 साल मिनिमम ऑन एन एवरेज लेता है, कई लोगों के लिए उससे ज़्यादा का भी सफ़र होता है. तो क्योंकि जब इतना लंबा प्रोसेस है तो उसको समराइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है 10 मिनट में. बट जो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो ये होता है कि आप सिलेबस समझिए, कीवर्ड समझिए सिलेबस के, और ये फिगर आउट करिए कि ये बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी है. धीरे धीरे जैसे आप पढ़ेंगे उस बुक लिस्ट के बारे में, उस चीज़ों के बारे में, तो आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा. और एक चीज़ और है कि एनसीईआरटी से शुरू करिए. फाउंडेशन होती है एनसीईआरटी, हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं, हम लोग स्कूल में भी इग्नोर करते हैं. यूपीएससी स्लाइटली बजन फॉर 1 सेकंड, एक बार फिर से with emphasis supplied, all right, NCERT, Radhika Gupta, the topper of this exam, is now telling you please read NCERT, okay, because अगर एक topper is saying this and हमारे aspirants में ये कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, since we are taking the toughest exam in the world, NCERT, oh no, ये तो school level है. So Radhika, thank you for bringing up that very important point. Please carry on. Sorry for me to budge in. Absolutely. I mean, we somehow feel that NCERTs are useless, but actually they are the most important Bible material, I would say. So they will make your foundation. Do read NCERTs. Do not ignore NCERTs, please. In fact, multiple times पढ़िए NCERTs को. They are Bible for your preparation. And after NCERTs आप फिर रेफरेंस बुक्स पे आइए. जो भी रेफरेंस, बहुत स्टैंडर्ड बुक्स है, मेरी भी वही स्टैंडर्ड बुक्स थी. नथिंग न्यू. कोई भी टॉपर नया मटेरियल नहीं ढूंढ के लाता है, वो वही चीज़ पढ़ता है, बस एक नए तरीके से पढ़ता है. तो आपको उस तरीके को एनालाइज करना है. एंड एवरीबडी इज़ यूनिक, एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ यूनिक. तो आपका भी एक अपना यूनिक तरीका होगा, आपको भी एक तरीके से चीज़ें समझ में आएगी. फिगर दैट आउट फॉर योर सेल्फ, कट आउट दैट नीश फॉर योर सेल्फ एंड वर्क ऑन दैट. ठीक है, ये चीज़ है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगी मेरी प्रेपरेशन में, विच आई थिंक वॉज लैकिंग इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल्सो. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम बहुत इग्नोरेंट हो जाते हैं उन चीज़ों के लिए, हम लिखते ही नहीं है ना. लाइक वी सॉल्व मल्टीपल मॉक्स, hundreds of mocks, but we barely give time to previous UPSC question papers. We barely analyze them. Same goes for mains papers also. We write a lot of mock questions every day, but हम कभी भी ये नहीं सोचते कि प्रीवियस ईयर यूपीएससी ने 6 साल क्या क्वेश्चंस पूछे हैं. डिड वी राइट दैट? तो ये मिस्टेक मैंने भी करी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में. आई एम ऑल्सो गिल्टी फॉर इट. बट सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने ये चीज़ इंप्रूव की एंड बिलीव मी इट इमेंसली हेल्प्ड मी, बिकॉज मैं टोन डाउन कर गई अपनी प्रिपरेशन को. मुझे समझ में आ गया कि दिस इज़ वेयर आई हैव टू हिट. सो व्हेन यू अंडरस्टैंड ना कि ये स्पेसिफिक एरियाज है जहाँ यूपीएससी फोकस कर रहा है, जहाँ पे उसे इंटरेस्ट है, एंड दीज आर वेरी स्पेसिफिक एरियाज, दीज आर नॉट लाइक ओशन नहीं है, ये बहुत छोटा सा लेक है. तो आपको फिगर आउट करना है कि वो लेक कहाँ पर है. ठीक है, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर आपका एक नॉर्थ पोल जैसा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. फॉलो देम रिलीजियसली, उनको देखो बार बार, फिगर दैट आउट एंड मेक अ स्ट्रैटेजी, मेक प्लानिंग. थोड़े से छोटे प्लान्स बनाइए, बड़े प्लान्स बनाइए, और फिगर करिए कि आज के दिन आपको क्या करना है. सो वन थिंग एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम. दैट्स हाउ यू गो अबाउट यूपीएससी. सो दैट हैज बीन माय स्टाइल ऑफ वर्किंग हियर. Radhika, listening to you, one of my very strongly belief notion has again come true. But toppers are not different. They don't do different things. They just do things differently. And मुझे एक और बहुत होता है कि
ये मैंने हमेशा, whenever last year also, whenever I've seen toppers, wherever I was teaching and all that, there is a very strong clarity in what your thought process is. You know, it goes across the board. It is very nice. And I think from Radhika, I would also, you know, quoting Radhika, I would say, okay, that this is what every learner must aspire to do. Ki learn things in a very simplistic way, but do it thoroughly. That is important. राधिका, एक शायर ने बोला था, मेरी कहानी रुदा दे जहां मालूम होती है, जिसे देखो उसी की दास्तान मालूम होती है। तो एक दास्तान है जो हर एक का सवाल होता है, और वो होता है ऑप्शनल्स। हाउ टू चूज वन ऑप्शनल? So first of all, we'd like to know कि what was your optional? Second, what was the thought process of choosing that optional, and any guidance to our learners, please. तो मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था, और मेरे लिए एक पर्टिकुलर रीज़न था एंथ्रोपोलॉजी लेने का। वो ये था कि मैं ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ, तो एक थोड़ी सी इंट्रीगनेस थी मुझे उस बारे में जानने के लिए। सो फॉर मी दैट वाज द रीज़न, बट हाउएवर वो एक एंटायर रीज़न नहीं हो सकता किसी भी ऑप्शनल को चूज़ करने का। So you have to be very wise while you're choosing your optional, क्योंकि it's very brilliantly said that optionals can make you or break you. Yes. बहुत वाइजली चूज करिए अपने ऑप्शनल को, और उसमें कुछ स्टैंडर्ड एक तरीका होता है। जैसे मैंने जो किया था, मैंने क्या किया कि मुझे पता था कि मुझे मैकेनिकल नहीं लेना है, थोड़ा बोर हो चुकी थी 4 साल पढ़ के, तो आई न्यू कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स मैं नहीं लेने वाली हूँ। सो आई केम डाउन टू पॉलिटिकल साइंस, आई केम डाउन टू सोशियोलॉजी, आई केम डाउन टू एंथ्रोपोलॉजी। ये 3 मुझे समझ आए, बाकी साइकोलॉजी वगैरह मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने वो छोड़ दिया। तो आप अपने लिए कोई 3 ऑप्शनल तक पहुंच जाइए, तो रिड्यूस डाउन करके कि यहाँ पे आपको चूज करना है। Okay, you narrow your choices down to 3. That's what you're saying. You narrow your choices. Yes. Okay, fine, fair enough. Carry. And then you have to decide. Then you have to go and look for certain previous year papers. Are you comfortable understanding the question? As a beginner, like you have not read the subject, but are you able to grasp what they're asking? Are you comfortable? Even with the slightest of knowledge, are you able to comprehend what are they saying? And then you reduce it down to 1 or 2 subjects. And the advice would be to read GS for 3-4 months and then decide your optional. Like I have seen people who come to preparation and immediately want to decide the optionals. So in my opinion, when I was doing that, I understood that it is not easy for me to decide कि मुझे क्या लेना है, because I don't even know the subjects. Hey, so I read for 3-4 months. From July onwards to September, I read the general studies. And then I figured out that I do not like geography to the extent that I would pursue it as an optional. I loved political science. So I was like, ठीक है, ये कर सकते हैं. So that is how you can understand where your interest might lie. So that will help you. If you understand GS, you will be able to understand what optional you want to go for. See, ठीक है. So I knew that sociology is a very good subject. Anthropology is another very good subject. Both these were like, I was really confused. So then last option I tossed. So that is how I came down to anthropology. But largely, Radhika, largely it is the same trends. You never thought about trends. मार्क्स ज़्यादा आते हैं, कम आते हैं, ऐसा कोई ट्रेंड है तो नहीं, हमें पता नहीं है, ऐसा कोई सीक्रेट है तो प्लीज बता दो। मेरे लर्नर्स को बहुत तमन्ना है ये पता कि कोई जरूर सीक्रेट तरीका होता है कि इस साल यही एग्जाम वाले पास होंगे, ऐसा तो नहीं है ना राधिका? प्लीज टेल अस। जी सर, एक्चुअली ये मिथ, मतलब मुझे मिथ लगता है, एंड द रीजन फॉर दैट इज कि कई बार क्या होता है कि एक 2 साल अगर किसी एक ऑप्शन ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया तो बहुत सारी भीड़ उस ऑप्शनल को परस्यू करने लगती है। अब जाहिर सी बात है, अगर ज्यादा नंबर ऑफ पीपल एक ऑप्शनल को पकड़ेंगे तो ज्यादा टॉपर्स भी उसी से निकलेंगे। ये बहुत कॉमन सेंस की बात हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्शनल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है या कोई ऑप्शनल जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आप परसेंटेज देखेंगे, इनफैक्ट यूपीएससी का खुद का एक डेटा रिलीज होता है, उसमें वो बताते हैं कि कितने टॉपर्स किस ऑप्शनल से आए हैं। तो आप देखेंगे कि मोरलेस दे आर सेम। अब कुछ ऑप्शन होते हैं जो बहुत ही कम लोग लेते हैं, जैसे लिटरेचर के सब्जेक्ट्स हैं, तो वहाँ पे इट इज अंडरस्टैंडेबल कि कॉमन लोग नहीं ले रहे हैं उसको। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो फेमस सब्जेक्ट्स हैं उसमें तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। और इनफैक्ट नॉर्मलाइजेशन भी होता है यूपीएससी में कि अगर कोई ऑप्शनल में ज्यादा नंबर आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, तो दे विल नॉर्मलाइज द स्कोर, क्योंकि वो अनड्यू एडवांटेज किसी भी एक ऑप्शन को नहीं देंगे। मुझे नहीं लगता कि हमें उस दौड़ में जाना चाहिए कि ये ऑप्शन अच्छा कर रहा है तो हम ले लेते हैं। यू शुड गो फॉर समथिंग दैट यू वुड अप्रिशिएट, यू वुड लाइक, क्योंकि आपको उसको 6 महीने 1 साल पढ़ना है। तो यू कैन नॉट टेक समथिंग बेस्ड ऑन द सोल आइडिया कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एनीवे आप 10 ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं जो आपको नहीं आते, might as well एक और आप पढ़ लीजिए, क्या फर्क पड़ेगा। And that itself will be a very speculative frame of mind which I'm sure that any rational person should not go into.
कीजिए इस साल, because that would be of course not a good thing to do. राधिका, एग्जाम की प्रिपरेशन कभी कभी 1 साल होती है, कभी कभी 2 साल होती है. 2 साल तो करीब बेयर मिनिमम ही समझ लो, प्रैक्टिकली तो होता ही है, बट ऑनवर्ड्स हो सकता है. सो बीच रास्ते में कई बार डर लगता होगा, डिमोटिवेशन होता होगा, सेकंड थॉट्स आते होंगे, और होते होंगे तो सबके साथ ही होते हैं. हाउ डिड यू मैनेज, इफ एट ऑल यू हैड टू गो थ्रू दिस प्रोसेस? व्हाट इज योर वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ इट? I'm no different. I also had the same thoughts every third, fourth day कि यार नहीं होगा, या क्या है ये, मतलब it takes a toll on your mental health so much because you are compromising a lot of things. आपके दोस्त compromise हो रहे हैं, आपकी family compromise हो रही है, your relationships are compromised, everything, right? तो मेरा तरीका एक सिंपल सा होता था कि I used to pursue what I love. So apart from studies, मैं sports में बहुत interested रहती थी. Okay. So I used to go and play table tennis and badminton for a couple of hours in the evening. तो ये चीज़ मेरा एक स्ट्रेस बस्टर, मेरे लिए स्ट्रेस रिलीज करने का बहुत अच्छा तरीका ये होता था. आई ऑल्सो यूज टू रीड एट टाइम्स, मुझे जो बुक्स अच्छी लगती थी, एंड कई बार स्टैंड अप कॉमेडी देखी है, यू वॉच फनी वीडियोज ऑन यूट्यूब, दैट इज हाउ यू रिलीज योर स्ट्रेस. तो हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि हमारी हॉबी हमें परस्यू नहीं करनी चाहिए क्योंकि यूपीएससी एक हॉबी किल के नाम से जाना जाता है. आई डोंट थिंक दैट्स एंटायरली ट्रू, एंड आई डोंट थिंक दैट्स हाउ इट शुड बी, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट अ रोबोट. तो आप 10 घंटे पढ़िए, बहुत ईमानदारी से 10 घंटे पढ़िए, बट देन give yourself 1 to 2 hours. वो आपके लिए खुद के लिए होने चाहिए, because that is how you will keep your sanity. तो आप सेन तभी रहेंगे जब आप हैप्पी है, जब आप खुश है, तभी चीजें समझ में भी आएगी. So that was my way of dealing with the stress. 10 मिनट में फिनिश करवा. Okay. Radhika, I won't take too long on this. Just one question before I go for your very important thing. Any don'ts for the aspirants? Do's to there are many. Anything that okay, not to do, anything which can create a problem? Do not read a lot. Do not. ठीक है, there is a perception कि हमें ये पढ़ना है, वो पढ़ना है. Do not do that. Trust yourself. Trust your instinct. What you're doing is right. You are in the right direction. Have that faith. बस यही एक lesson है कि use your common sense. Do not fear that this is wrong, this is wrong, no, this is not wrong. Do it. That's great, Radhika. And I know, and I think all my learner friends will also appreciate, Radhika will today and from now onwards a very, very busy person, and she's taken out her precious time for all of you. Learn from her. Radhika, any parting statements, any message to your friends who are right now watching you? And with that, I will also take your consent that we will be relaying this video and sharing it on YouTube, if it is okay with you, so that it is to the advantage of everyone. Yeah, absolutely. So there's just one line which somebody told me 2 years back, and it has stayed with me forever. So that is the only lesson I will give, कि सपने बड़े देखिए, कभी छोटे सपने मत देखिए, और जितना बड़ा सपना है ना, उससे ज़्यादा बड़ी मेहनत करिए उस सपने के लिए. So that was something that my father told me 2-3 years back, and it has stayed with me forever. That's the only lesson I would give. That is great, Radhika. Simple line and such a profound message. We wish you from everyone at Unacademy again a huge congratulations, and we wish you all the best for life to come. May you rise to even greater heights, and in the words of Unacademy, let's crack it, and Jai Hind. Radhika, congratulations, and congratulations to everyone at your family and from everyone here. Thank you very much for joining, Radhika. Thank you very much. Take care. Thank you very much, sir. Thank you. Jai Hind.